Hello, aspirants. Welcome to Sociologic at Wings Udan, your one stop destination for all sociology related concerns. Dear students, today we are going to discuss JKPSC Lecturer Sociology Sectional Test number 1. It includes first two chapters from first unit of your syllabus. आप syllabus देख सकते हैं. This is the syllabus for the post of 10+2 lecturer sociology. This is the first unit, introduction to sociology. These are the first two chapters जिसके basis पे हमने test series बनाई है. First sectional test. So these are the first two chapters, sociology, discipline and perspectives. इसके अंदर कुछ topics आते हैं: definition, nature and scope of sociology, emergence and development of sociology as a discipline, French and Industrial Revolution, and enlightenment and its impact on development of sociology as a distinct discipline. Second topic, understanding sociological perspectives. Third, relationship of sociology with other social sciences. Then we have second chapter, that is sociological concepts: society, community, association, social group, status and role, norms and values, culture, its definition, its types and allied concepts, social stratification on the basis of race and ethnicity. Okay, so these are the first two chapters जिसके basis पे हमने test series बनाई है. Let's get started. So first question, is sociology as a separate discipline emerged primarily out of? Sociology एक separate discipline उभर के आ गया, एक नया branch of social science बन के आ गया. तो what were the main reason? Russian Revolution? No, 1917 में आया था. तब सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट्स जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके थे. 1895 में डरखीम ने पहला डिपार्टमेंट बनाया फ्रांस में. 1718 के आसपास, 18 कुछ लोग 19 भी बोलते हैं, सोशोलॉजिकल डिपार्टमेंट जर्मनी में डेवलप किया था मैक्स वेबर ने. सो बाय 1917, by Russian Revolution, at the time of Russian Revolution, sociology had already been developed as a discipline. So ये reason नहीं हो सकता है. Enlightenment thought, yes, that was the push. Classical thought, big no. Classical thought means old thought which was metaphysical in nature. So sociology पे positivism का impact था, न कि classical thought का. So this can't be the answer. Social philosophy about the society, that is reality of the society. नहीं ये भी नहीं हो सकता है. So the right answer is enlightenment thought which had a direct impact on the development of sociology as a discipline. जो enlightenment thinkers थे, जिनको philosophers बोलते थे, they started reflecting on the society, nature of society, और वो एक intellectual push बन गया for the development of sociology as a distinct discipline. So the right answer is enlightenment thought. Okay, second question, what paved way for the destruction of feudal system and emergence of modern capitalism? किस चीज़ ने feudal system को ख़त्म किया और फिर आ गया capitalism? That is, what was the force which led to the transition of society from feudal to capitalistic? Feudal, which was based on land, to capitalistic mode of production. What was the main reason? The main reason was the industrial revolution. ठीक है, industrial revolution was the main reason which led to the change of European society from feudal to capitalistic. Scientific thought, no, it led to the development of sociology. French Revolution, it was a push for the development of sociology because of the anomalies, because of the chaos, confusion created by French Revolution, and sociology emerged to answer those questions which were posed by the French Revolution. Globalization, no, big no. So the right answer is industrial revolution. Okay, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ गया. एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म,
या उस टाइम का जो कैपिटलिज्म था वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कारपोरेट सेक्टर, उसके बेस्ड पे है. सो द राइट आंसर विल बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर फैक्टर दैट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया? इट वाज बिकॉज ऑफ द एनोमलीज created by the material conditions in the France. Okay, so the estate system जो आया था it was very rigid. इसने डिवाइड किया था सोसाइटी into clergy, into लैंडलॉर्ड्स जिसको नोबिलिटी भी बोलते हैं, और कॉमनर्स जिनको सर्फस भी बोलते थे. सो इट वाज वेरी रिजिड. सो देयरफॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन tried to correct the anomalies created by the rigid estate system. So the major factor which led to the French Revolution, obviously enlightenment gave a push, but the major factor was the rigidity of the estate system. आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, industrial revolution, yes, it did play a part. Positive philosophy, it did play a part in the emergence of sociology, not in the French Revolution. सो एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एस्टेट, तीनों रीजन है, लेकिन मेजर फैक्टर कौन है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज एस्टेट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 4, द हियरार्किकल सिस्टम एग्जिस्टेड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऊपर वाले क्वेश्चन का कोरोलरी है, उसी के साथ रिलेटेड है. सो व्हाट वाज दिस रिजिड हियरार्किकल सिस्टम which was in the France? It was a state system which was based on land. So one who controlled the land were the feudal lords, and those who worked on the land were the सर्प्स. सो द हियरार्किकल सिस्टम, जिस तरह इंडिया में कास्ट सिस्टम है, उसी तरह यूरोप में एस्टेट सिस्टम था. सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस इन लाइक क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स जिनको सर्प्स भी बोलते हैं, एटसेट्रा. ठीक है. मूविंग फर्दर, विच सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ सोसाइटी वर्क्स? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन है. कौन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डील करता है कि सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड है and how different parts work together to maintain stability. अगर different parts एक साथ काम करते हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, that means these parts are playing a function. Function means role. So different parts work, that is different parts perform their function. So the right answer will be functionalism. So अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे डिलीनेट की कि different parts work and there is a structure is made up of parts, and these parts fulfill the needs of the structure. These parts work, these parts function. work करने का मतलब कोई वही function बोलते हैं. So the right answer is functionalism. Which sociological perspective emphasizes the role of social inequality and power struggle? देखिए inequality है, सोसाइटी क्लासेस में बटेगी, फिर उसके बाद ये क्लासेस आपस में इनका क्लास स्ट्रगल होगा, क्लास स्ट्रगल के बाद सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में चेंज आएगी. सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट लेड चेंज. देखिए ना, पावर स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब है देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट लेड चेंज. देयर विल बी इनइक्वालिटी, वेरी गुड. इनइक्वालिटी विल लीड टू पावर स्ट्रगल. This will lead to the generation of conflict, and resolution of conflict will lead to change. So which sociological perspective emphasizes this thing? That is conflict perspective. क्वेश्चन में ही आंसर है, बस आपको ध्यान दे के अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करके आपने सही आंसर को टिक करना है. ठीक है. 7th क्वेश्चन, विच सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बल्स एंड मीनिंग्स? देखिए सिम्बल्स पे फोकस करती है, मीनिंग्स पे. जैसे लैंग्वेज इज ए सिंबल. जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बात करते हैं, तो उसके थ्रू हम मीनिंग्स कम्युनिकेट करते हैं इन सोशल इंटरैक्शन. सो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात चल रही है, लेकिन इट यूजेस सिम्बल्स एंड सिम्बल्स गिव मीनिंग्स. ठीक है. सो द राइट आंसर इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. देखिए इंटरैक्शन भी है और सिंबल भी है, हो गया सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए. ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में. मुझे लगता है कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बिल्कुल ईजी. अपने इंस्टिंक्ट्स पे बिलीफ रखिए और
क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के बाद क्वेश्चन से ही क्लू निकाल के आंसर तक पहुंच जाइए। जैसे सिंबल है और इंटरैक्शन है, हो गया सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, खत्म बात। ओके, विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। कौन सा ऐसा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हाईलाइट करता है सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, किसके लिए? सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल हो गया एजेंसी, सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर, स्ट्रक्चर शेप्स एजेंसी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखो ना, स्ट्रक्चर अगर आपने ये डिलीनेट कर दिया कि देयर इज सोशल स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड व्हाट सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस मीन स्ट्रक्चर, and what does this structure do? This structure shapes the individual behavior, so that means this structure is functioning, it is doing something, it is functioning and trying to shape individual behavior। तो shaping का मतलब है ये function कर रहा है। social norms and institutions मतलब structure हो गया, structure and function हो गया structural functionalism। इस तरह से आपको सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस? क्या है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस? सोशियोलॉजी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं, ये तो हो गया एग्जैजरेशन, ये हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर सोशल साइंसेस एज अदर सोशल साइंसेस आर डिपेंडेंट ऑन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, बिल्कुल भी नहीं है। Sociology is the branch of social sciences, not psychology. Sociology intersects and overlaps with other social sciences. Intersects बिल्कुल, और overlap भी करता है। Sociology is only concerned with natural phenomena. No, sociology is concerned with social phenomena, not natural phenomena. So the right answer is C. ठीक है, इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के गलत आंसर्स को निकाल के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। पिक द ऑड वन आउट, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो 10th क्वेश्चन है, दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। द टर्म सोशियस मैंने बार बार डिस्कस किया अपनी लेक्चर सीरीज में, इसलिए हमारी लेक्चर सीरीज बहुत ज़रूरी है। सोशियस इज ए लैटिन वर्ड, लॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, बन गया सोशियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशियस? अब बताइए मीनिंग क्या है। सोशियस मीन्स कंपेनियन, क्योंकि सोसाइटी में जब तक कम्युनिटी फीलिंग नहीं होगी, सोसाइटी में जब तक इंटीमेट फीलिंग नहीं होगी, तब तक सोसाइटी का बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी, कोहिजन, एंड दिस इज कॉज्ड बाय कंपेनियनशिप, बिलोंगिंगनेस, ठीक है। सो सोशियस मीन्स बिलोंगिंगनेस और इट मीन्स कंपेनियन, ठीक है। इट्स अ लैटिन वर्ड। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी एज कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस? ऐसा क्या है जो सोशियोलॉजी पढ़ती है बाकी सोशल साइंसेस नहीं पढ़ते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर साइकोलॉजी भी पढ़ती है, तो ये तो नहीं हो सकता है। सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन छोड़ो, इकोनॉमिक सिस्टम्स, ये तो इकोनॉमी का असल में काम है। इकोनॉमी तो पूरा इकोनॉमिक पे है ना। ये बोलता है कि क्या मेन फोकस है सोशियोलॉजी का। इकोनॉमिक सिस्टम मेन फोकस है इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मेन फोकस है पॉलिटिकल साइंस का। सो द मेन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने मेरे साथ साथ पॉज करके हर किसी क्वेश्चन को आंसर दीजिए। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, हर किसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसे ए बी सी अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। फिर उसके बाद लास्ट में मिलाइए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। उससे भी हमें अंदाज़ा पता चल जाएगा
कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। 13th क्वेश्चन, हाउ डज सोशियोलॉजी रिलेट टू हिस्ट्री? बाय स्टडिंग पास्ट political systems, by understanding historical social structures and changes, by focusing on ancient economic systems. Ancient economic system नहीं है, political system नहीं, ये तो political science हो गया, ये तो economics हो गया. by examining cultural artifacts हो गया anthropology. ठीक है, so the sociology related to history by understanding historical social structures and changes. history इसको बोलते हैं philosophy of history, that is inquiry into the nature of change. philosophy of history एक important intellectual stream है which led to the development of sociology. so sociology history के साथ इसलिए related है क्योंकि sociology और history दोनों understand करना चाहते हैं historical social structures and changes. history is the present, history is the past sociology, and sociology is the present history. sociology without history is rootless and history without sociology is fruitless. आप हमारी लेक्चर सीरीज देख लीजिए, पता चल जाएगा. ठीक है. 14th क्वेश्चन, विच सोशल साइंसेस फोकसेस प्राइमरली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज? डिस्ट्रीब्यूट करो और यूज करो रिसोर्सेज को. ठीक है. सो द मेन साइंस पॉलिटिकल साइंस तो रिसोर्सेज के साथ नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ. एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिन ऑफ मैन, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. बायोलॉजी और सोशल साइंसेस को लिंक करने की कोशिश करती है. सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप्स पढ़ती है. सो द राइट आंसर इज इकोनॉमिक्स. डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मेन काम है इकोनॉमिक्स का. 15th क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस? सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है? सोशियोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, सोशल बिहेवियर पढ़ती है. खत्म बात. इंडिविजुअल बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ सकती है, सोशियोलॉजी जनरल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी पढ़ती है. आगे वाला पार्ट में पढ़ूंगा ही नहीं. ठीक है. सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन कल्चर वाइल पॉलिटिकल साइंस फोकसेस ऑन गवर्नेंस. हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है. ठीक है. सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं. सोशल प्रोसेसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशनशिप्स को पढ़ती है. खत्म बात. सोशियोलॉजी लुक्स एट सोसाइटी ब्रॉडली वाइल पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पावर एंड पॉलिटिक्स. ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस भी पढ़ता है थोड़ा थोड़ा. असल में पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इज मेजरली रिलेटेड टू गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और कल्चर जो है मेनली एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है. सोशियोलॉजी भी पढ़ती है, मैं ये नहीं बोल रहा सोशियोलॉजी में कल्चर नहीं है, लेकिन मेन फोकस है एंथ्रोपोलॉजी का है. और गवर्नेंस मेन फोकस पबेड का है. सो इन दो में से मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दैट सोशियोलॉजी स्टडीज एट सोसाइटी ब्रॉडली. सो इट इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी ब्रॉडली मीन्स इट इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. बिल्कुल सही है. वाइल पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पावर एंड पॉलिटिक्स, ये भी तो सही है. सो द राइट आंसर इज डी, मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी का किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है? द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस, बिल्कुल पढ़ती है. बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ती है. ठीक है. ओरिजिन, एवोल्यूशन एटसेट्रा. द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स, ये भी पढ़ती है. इकोनॉमिक सिस्टम्स इन सोसाइटी, ये भी पढ़ती है. पॉलिटिकल सिस्टम्स ये नहीं पढ़ती है. अब हमने निकालना है इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी. ठीक है. इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी. सो क्वेश्चन है what does anthropology focus on in relation to sociology? मतलब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन बोल रहा है ना, इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी, मतलब दोनों चीज़ें क्या पढ़ती है. देखो, अगर हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को मिलाएंगे तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो दोनों को मिलाती है उसको बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी. तो असल में क्वेश्चन है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ती है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी भी पढ़ती है
और एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ती है। तो इसका मेन फोकस जो है वो है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ एंड कल्चर। ये वो एरिया है जहाँ पे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ओवरलैप होते हैं, यानी दिस इज दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी where sociology and anthropology meet, where anthropology focus on certain aspects in relation to sociology. So the right answer is B. ठीक है। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स? सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशनशिप है? सोशियोलॉजी फोकस इंडिविजुअल, गलत। बोथ स्टडी सोशल सिस्टम्स बट इकोनॉमिक्स एम्फसाइजेस वेल्थ एंड रिसोर्सेज, ये तो ठीक लग रहा है। इकोनॉमिक्स इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर अनलाइक सोशियोलॉजी, नहीं। इकोनॉमिक्स इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर, ये तो सही है, अनलाइक सोशियोलॉजी नहीं। सोशियोलॉजी, व्हाट इज द रिलेशनशिप? ओके, अनलाइक सोशियोलॉजी, ठीक। सोशियोलॉजी फोकसेस सोली ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स लाइक अनलाइक इकोनॉमिक्स। सोली, क्या सोशियोलॉजी सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ती है? नहीं। इकोनॉमिक्स इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर अनलाइक सोशियोलॉजी, ये भी सही है, लेकिन हमें रिलेशनशिप बतानी है। सो रिलेशनशिप निकल के आएगी दैट बोथ स्टडी सोशल सिस्टम्स बट इकोनॉमिक्स एम्फसाइजेस वेल्थ एंड रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादातर वेल्थ और नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज या सोशल रिसोर्सेज जो भी हैं उन पे फोकस करती है, लेकिन सोशल सिस्टम्स के साथ दोनों डील करते हैं, बिकॉज सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बोथ एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर विद इन सिस्टम्स। सो बोथ डील विद ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये तो इनको सेपरेट करती है ना। देखो, इकोनॉमिक्स इग्नोर्स ह्यूमन बिहेवियर, नहीं, टोटली इग्नोर नहीं करती है, पढ़ती है, अनलाइक सोशियोलॉजी। सो दैट इज द डिफरेंस। लेकिन हमें रिलेशनशिप बोलनी है, तो रिलेशनशिप यहाँ पे निकल के आएगी बी वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, इसकी लैंग्वेज भी टफ है और इसके ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ये याद रखना। 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ही सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिविटी लैग कर रहे होंगे। सो बिकॉज दे आर लैकिंग इन ऑब्जेक्टिविटी यू हैव टू मेक वेरी एजुकेटेड गेसेस, ठीक है। सो रिलेशनशिप बोलनी है, दोनों कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं आपस में। सो दे स्टडी सोशल सिस्टम्स, ह्यूमन बिहेवियर दे ट्राई टू स्टडी, तो रिलेशनशिप निकालनी है इनमें। मगर इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ और रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करती है, अदरवाइज दोनों जो है मर्ज होते हैं। बोथ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स दे आर इंटर कनेक्टेड। 18th क्वेश्चन, विच डिसिप्लिन इज कॉल्ड द सिस्टर साइंस ऑफ सोशियोलॉजी? सिस्टर जो है वो है एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ती है प्रिमिटिव सोसाइटीज़, सोशियोलॉजी पढ़ती है मॉडर्न सोसाइटीज़। तो आप मान लीजिए सोशियोलॉजी जो है ये एंथ्रोपोलॉजी की अर्बन बहन है, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सोशियोलॉजी की रूरल सिस्टर है। सो रूरल सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी इज एंथ्रोपोलॉजी एंड अर्बन सिस्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज सोशियोलॉजी बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री पढ़ने से सोशियोलॉजी में क्या बेनिफिट आता है? बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, ये तो इकोनॉमिक्स का काम है। बाय इग्नोरिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, इग्नोर क्यों करने हैं, वो तो पढ़ने हैं हमें। इसको हिस्टोरिकल मेथड बोलते हैं ना सोशियोलॉजी में, हिस्टोरिकल मेथड। हिस्ट्री जान लो, पता चल जाएगा सोसाइटी का क्या हाल था पहले। तो बाय सोली स्टडिंग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, नहीं, ये तो एंथ्रोपोलॉजी का काम है, और सोली बोल रहा है, सोली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सो बाय एनालाइजिंग पास्ट सोसाइटल चेंजेस एंड ट्रेंड्स, सोशियोलॉजी गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से ये चीज़ मिलती है सोसाइटी को, दैट व्हाट वर द पास्ट सोसाइटीज लाइक, व्हाट वर द ट्रेंड्स, व्हाट वर द चेंजेस, ठीक है।
तो बी इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस डज सोशियोलॉजी ऑफ्टन एक्सप्लोर? पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के किस एरिया को एक्सप्लोर करती है? ऑब्वियसली पार्ट बी इसका राइट आंसर होगा। यस, पावर एंड अथॉरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। इलेक्टोरल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेफोलॉजी, अलग ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज कॉल्ड सेफोलॉजी के कैसे इलेक्शंस होते हैं वो इनका काम है। फिस्कल पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, ये तो हो गया आपका डिफेंस वगैरह। तो द राइट आंसर इज पावर एंड अथॉरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स? सोशियोलॉजी ने क्या कंट्रीब्यूशन दी है टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स? बाय प्रोवाइडिंग डेटा ऑन इंडिविजुअल वेल्थ। इंडिविजुअल की बात होगी, ये बोल रहा है हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट। सो इंडिविजुअल नहीं, सोशियोलॉजी अगर पढ़ेगी तो पढ़ेगी पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी इन जनरल, इंडिविजुअल को निकाल दो। बाय एग्जामिनिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे सोसाइटी पे, ये राइट आंसर हो सकता है। बाय फोकसिंग सोनली ऑन ट्रेड, नहीं सोशियोलॉजी और ट्रेड का क्या काम है, क्वेश्चन को समझो। हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। ओके, बाय स्टडिंग इंटरनेशनल मार्केट्स, नहीं ये तो इकोनॉमिक्स का काम है सोली। सो बाय एग्जामिनिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई आपने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कोई स्कीम आ गई, कोई नई ट्रेड पॉलिसी आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। सो दिस इज हाउ सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक्स, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम सोशियोलॉजी? कौन सी चीज़ एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करती है? एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, नहीं पास्ट पे ज़्यादा, रूरल ट्राइबल सोसाइटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। सोशियोलॉजी स्टडीज़ एंशंट, नहीं उल्टा दिया है इसने, है ना। एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट, नहीं सोशियोलॉजी स्टडीज़ एंशंट, नहीं सोशियोलॉजी प्रेजेंट पे देती है, उल्टा दिया है इसने। सोशियोलॉजी फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी, एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन एंशंट। सोशियोलॉजी यूजेस फील्ड वर्क एक्सक्लूसिवली अनलाइक एंथ्रोपोलॉजी, नहीं एंथ्रोपोलॉजी में भी फील्ड वर्क होती है। ट्रॉबरी एंड आइलैंडर्स में एयर रेडक्लिफ ब्राउन की स्टडीज़, मार्गरेट मीड की स्टडीज़, फ्रांस बोआज की स्टडीज़, ठीक है ना। सो फील्ड वर्क सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, असल में एंथ्रोपोलॉजी में ही होता है। सो ये आंसर नहीं हो सकता है। एक्सक्लूसिवली ये वर्ड्स पे फोकस रखो ना, काट दो। एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल कल्चर्स वेल सोशियोलॉजी स्टडीज मॉडर्न सोसाइटीज। अब आ गया ना लाइन पे, अब सही बात बोल रहा है। सो सी इज द राइट आंसर, आगे पढ़ना ही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी अवॉइड सोशल इंस्टीट्यूशंस अनलाइक सोशियोलॉजी। क्यों अवॉइड करेगा, एंथ्रोपोलॉजी भी तो पढ़ती है सोशल इंस्टीट्यूशंस को, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ता है, सो अवॉइड की बात ही नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी, एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल, सोशियोलॉजी स्टडीज मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 23, हु स्टडीड द रोल ऑफ क्लास इन पॉलिटिकल पावर? क्लास और पावर को किसने जोड़ दे दिया? क्लास, स्टेटस, पार्टी। कार्ल मार्क्स बोलता था क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एक ही तरह की है, जिसके पास वेल्थ है उसके पास सब कुछ है, स्टेटस भी है पावर भी है। मैक्स वेबर ने बोला नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जिसके पास पावर है उसके पास वेल्थ नहीं हो सकती, जिसके पास वेल्थ है उसके पास पावर नहीं हो सकता। ले लीजिए ना एग्जाम्पल, अंबानी, अंबानी के पास वेल्थ है लेकिन पॉलिटिकल पावर तो मोदी जी के पास है। मोदी जी के पास पावर है लेकिन पैसा तो अदानी अंबानी के पास है, ठीक है ना। स्टेटस ब्राह्मण्स का है, कोई बड़ा ही कोई बाबा है या किसी मठ पे बैठा है कोई साधु है, ठीक है ना, उनके पास स्टेटस होगा लेकिन ना ही वेल्थ है ना ही पावर है। सो ये चीज़ जो स्टडी की है इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। किताब लिखी है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, ये लिखी मैक्स वेबर ने। सो द राइट आंसर इज मैक्स वेबर। अमील दरखाइम, ये तो फंक्शनलिस्ट है, क्लास का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी, कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्वेश्चन फंसा था मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के बीच में। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ क्लास पे फोकस किया है
पॉलिटिकल पावर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है. सो मैक्स वेबर हैज़ एनालाइज्ड हाउ क्लास, स्टेटस एंड पार्टी अफेक्ट वंस पावर एंड पोजिशन इन सोसाइटी, particularly in politics. Question number 24. What do sociology and anthropology share in their methodologies? ऐसा क्या है जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कॉमन है? एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस. सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है. एंथ्रोपोलॉजी किसी हद तक करती है जब वो ये क्या बोलते हैं इसको, एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, किसी हद तक पॉसिबल है एवोल्यूशन पार्ट. एंथ्रोपोलॉजी में हम जेनेटिक्स पार्ट, लेबोरेटरी में इसकी टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है दे आर गाइडेड बाय मीनिंग्स, मोटिव्स एंड चॉइसेस. उनका जो रेस्पॉन्स है वो चेंज होता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. मार्केट सर्वेज, ये तो इकोनॉमिक्स का काम है. एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी में मार्केट सर्वे का क्या काम है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री का कॉमन है, सोशियोलॉजी का है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते. हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि जिस ग्रुप को आप पढ़ रहे हो उस ग्रुप के साथ बैठो, वो जो काम करते हैं वो करो, और साथ साथ में उनको स्टडी करते रहो, यानी ऑब्जर्व द पीपल बाय पार्टिसिपेटिंग इन देयर डे टू डे लाइफ. मेलानोव्स्की ने किया, या रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, मार्गरेट मीड ने किया, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट. विलियम वाइट, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, एन इटालियन स्लम, ये सोशियोलॉजिस्ट है. विलियम वाइट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो करती है. आप बोलोगे सर सोशियोलॉजिस्ट में किसने की है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? विलियम वाइट बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, अच्छी एग्जाम्पल है, जिसने अमेरिका में एक इटालियन स्लम की स्टडी की है. उसका नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, ऐसा बोलते हैं उसको, एन इटालियन स्लम. व्हाट इज सोसाइटी? बिल्कुल सहल क्वेश्चन है, इजी है. ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया. ये तो पॉपुलेशन हो गई, है ना. किसी डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में कितने इंसान रहते हैं, तो पॉपुलेशन हो गई. सोसाइटी थोड़ी है. ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट एनी इंटरेक्शन. जब तक इंटरेक्शन नहीं है तो सोसाइटी कहाँ से है? ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स अमंग पीपल. हाँ, लोग होने चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए. दिस इज द राइट आंसर. ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद लीगल स्टेटस. ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई या एसोसिएशन हो गई, इसको सोसाइटी नहीं बोलते, ठीक है. सो द राइट आंसर इज सी. ओके, विच आर द फॉलोइंग द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लीगल स्ट्रक्चर नहीं. विलेज का लीगल स्ट्रक्चर होता है, लीगल मतलब लॉ से बना हुआ, ये लिखित होता है कि कोई कानून ऐसा बनाया जाता है कि ये फलानी बंदा इस कम्युनिटी, इस विलेज, इस टाउन, इस सिटी का पार्ट है, नहीं. सो लीगल स्ट्रक्चर नहीं होता. शेयर्ड इंटरेस्ट इज ऑनली, मतलब इनके इंटरेस्ट शेयर्ड है ऑनली, बस यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नहीं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो सकती है, लेकिन ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. प्राइमरी मतलब बेसिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने आपको बार बार बोला, कम्युनिटी में दो चीज़ें याद रखना. एक इनकी जोग्राफिकल लोकेशन होती है, और इनकी फेस टू फेस इंटरैक्शन होती है. सो द राइट आंसर इज जोग्राफिक लोकेलिटी. एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, प्लस इनकी सोशल इंटरैक्शन होती है, ठीक है. सो द राइट आंसर इज that communities are defined by a shared location and continuous social interaction among its members. Geographical location plus social interaction gives rise to community. This is the right answer. जैसे विलेज है, गांव है, तो देखो ना, गांव की ये फीचर है. गांव का कोई एरिया होता है जो वो इनहेबिट करता है, साथ साथ में गांव में जो लोग होते हैं उनकी फेस टू फेस इंटीमेट कनेक्शंस होती हैं, ठीक है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंस एन एसोसिएशन. एसोसिएशन इनमें से कौन है? ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए विलेज. ये तो कम्युनिटी हो गई, अभी बताया मैंने, क्योंकि इनके इंटरेस्ट शेयर्ड होते हैं, इनके फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, इनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है. सो एसोसिएशन तो नहीं है.
ए ग्रुप फॉर्मड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए, बिल्कुल ये राइट आंसर है। ए स्पॉन्टेनियस गैदरिंग ऑफ पीपल, ये तो क्राउड हो गया ना, कि किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, लोग आके स्पॉन्टेनियसली गैदर हो गए। ए कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ए सोसाइटी, कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी जो है आप इसको इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन नहीं बोल सकते। एसोसिएशन इज समथिंग विच इज़ गोल ओरिएंटेड, विच इज़ फॉर्मड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे। सो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो वो मैं 1-2 दिन के बाद अपलोड करूँगा, ठीक है। विच ऑफ दिस बेस्ट डिफाइंस एन एसोसिएशन, ओके दिस इज डन। विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सोसाइटी एज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, अब जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल है। किसने सोसाइटी को बोला है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स? जब बहुत सारी सोशल रिलेशनशिप, दिस इज पर्सन ए, ही हैज इंटरेक्शन विद बी, सी, डी, ई, एफ, जी हैज विद एच, आई, ये देखो G itself has with H has with F, H also has with E, I has with D। सो ये जो वेब यहाँ पे सोशल इंटरैक्शन रिलेशनशिप्स की बनी, इसको बोलते हैं सोसाइटी। तो किसने इस तरीके से सोसाइटी को डिफाइन किया है? इट इज़ नन अनदर देन मैकाइवर एंड पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, स्कॉलर्स है, सोशोलॉजिस्ट्स है, इसको याद रखना है आपको, इसको रट्टा मार लो। वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस ऑफ द सोसाइटी, easy and best definitions, because society is based on social relationships, but these relationships are neither linear nor cyclical, but they form a web, intricate web, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। so this is a society according to McIver and Page। which of the following is not, जब not आएगा ना तो पहले इसको गोला मार लो। not a characteristic of a social group, इनमें से कौन सोशल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सोशल इंटरेक्शन होती है बिल्कुल, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, इसके बेसिस पे भी बनता है ना ग्रुप। देखो सोशल इंटरेक्शन, आप इंटरेक्ट करते हो पीयर ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ। सो सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है सोशल ग्रुप के लिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फैमिली में बिलोंगिंगनेस है, कम्युनिटी में बिलोंगिंगनेस है, तो ये भी ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट, आप क्यों लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो, क्यों ग्रुप बनाते हो? क्योंकि आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं। आप क्यों ऑफिस जाते हो, ठीक है ना? आप क्यों इंस्टीट्यूट जाते हो और एक ही क्लास में सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं? क्योंकि सब बच्चों के कॉमन इंटरेस्ट हैं। तो ग्रुप जहाँ पे होगा उसका कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनमें सोशल इंटरेक्शन होती है, उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो सकती है, लेकिन सेम इनकम लेवल जो है ये किसी भी ग्रुप के लिए क्राइटेरिया नहीं है। सेम इनकम लेवल की, एक ही लेवल के सब पैसे कमा रहे हैं, आपके इतने सारे दोस्त हैं, आपके इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या सबकी इनकम सेम है? नहीं है ना। सो सोशल ग्रुप की सेम इनकम लेवल, इट कांट, ये नॉट वाला पार्ट है ना, इट कांट बी दे, आपको गलत चुनना है, इट कांट बी the characteristic of a social group। so this is the right answer, because he is asking which of the following is not, तो not पे फोकस है। लास्ट क्वेश्चन आज के डे का, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रुप? फैमिली किस तरह के ग्रुप की एग्जाम्पल है? मैंने आपको बोला वॉलंटरी ग्रुप। वॉलंटरी मतलब जिसमें आप जानबूझ के जाओगे, कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, कोई एसोसिएशन है, आप पे निर्भर है, आप पे डिपेंडेंट है कि आप बनो या ना बनो, इट इज़ योर चॉइस। वॉलंटरी मीन चॉइस, लेकिन फैमिली में चॉइस नहीं है भाई। पैदा हो गए, चाहे अमीर के घर में पैदा हो गए, गरीब के घर में पैदा हो गए, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर क्लास लोअर क्लास, ये आपके बस की बात नहीं है। सो फैमिली इज़ नॉट ए वॉलंटरी ग्रुप। अच्छा, फॉर्मल मतलब जो किसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर से बना हो, जो बनाया जाता हो, जो इनैक्टेड हो, जिसमें रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे काम करना है, कैसे रहना है, नहीं रहोगे तो निकल जाओ।
फैमिली में भाई साहब ये सारी चीज़ें नहीं होते। फैमिली इज़ नॉट ए फॉर्मल ग्रुप, इट इज़ इनफॉर्मल ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप इज समथिंग जिसकी यही फीचर्स है, ये फॉर्मल भी होता है, वॉलंटरी भी होता है। जैसे ट्रेड यूनियन, कोई एसोसिएशन, आपका ऑफिस कि जहाँ पे उतनी ज़्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है, उतनी ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होती है। रिलेशनशिप बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होती है सेकेंडरी ग्रुप में। जैसे ऑफिस में आपका काम है 10 से 4 काम ख़त्म, फिर आपके जो स्टाफ है वो ठीक है, बीमार हैं, उनने कुछ खाया नहीं खाया, वो आपका काम नहीं है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में होती है इंटीमेट, फेस टू फेस कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो फैमिली इज़ अ प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी नहीं है भाई साहब, क्योंकि सेकेंडरी में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है, इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है, इनफॉर्मेलिटी नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रुप में फॉर्मेलिटी होती है, ये वॉलंटरी हो सकता है, इसमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती है। लेकिन फैमिली में होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो फैमिली इज़ अ प्राइमरी ग्रुप, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ये, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारी इस इनिशिएटिव को जिसका नाम है सोशियोलॉजिक, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल सोशियोलॉजी रिलेटेड कंसर्न्स। और जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसके साथ ये टेस्ट सीरीज़ फ्री आती है। सो सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें ये टेस्ट सीरीज़ इंटीग्रेटेड है। सो इट हैज़ गॉट दिस टेस्ट सीरीज़ इंटीग्रेटेड, सो इट हैज़ गॉट इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़। लेकिन आप सेपरेटली भी इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हो। हम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कराएंगे, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यू कैन सेपरेटली रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट सीरीज एट नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। सेपरेटली रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट सीरीज और इस चीज़ का, इस इनिशिएटिव का बेनिफिट्स उठाओ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और रजिस्टर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। We will meet in the next video. Till then, stay safe, stay blessed. God bless you all. Thank you.